हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट सेशन करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। मतलब बोले यहाँ पे देखो आपको टू एपीज दिया है, ठीक है। अब टू एपीज में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू में nth टर्म इक्वल होगा, ठीक है। So for the first AP, you know A is equal to 63, D is equal to 65 minus 63 which is equal to 2. यहाँ तक first AP है and this is the second AP, correct? So you know that the general form Tn is equal to A plus n minus 1D, that is Tn is equal to 63 plus n minus 1 into 2, correct? Now for the second AP, you know that A is equal to 3, A is equal to 3, D is equal to 10 minus 3 which is equal to 7, correct? So Tn will be what? 3 plus n minus 1 into 7, correct? Now according to the given condition, you know that both the terms are equal, that is 3 into n plus 3 plus n minus 1 into 7 is equal to 63 plus n minus 1 into 2, correct? अब मैं क्या करूंगी, n minus 1 टर्म को एक जगह ले आऊंगी, that is n minus 1 into 7 minus of n minus 1 into 2 is equal to 63 minus 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7n minus 7, 2 into n is 2, minus 2n, minus into minus is plus 2, that is 7n minus 7 minus 2n plus 2 is equal to 63 minus 3, that is 60. That is 7n minus 2n is what? 5n. 5n minus 5 is equal to 60. So 5n is equal to 65. तो n क्या हो जाएगा, 13, correct? So for 13th term in the two APs, when n is equal to 13, then the 13th terms of both the APs are equal, ठीक है। The 13th term of both the APs is equal, ठीक है, समझ में आया। Next, determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. अब यहाँ पे लास्ट जब हमने ऐसे टाइप के सम्स देखे थे उसमें खाली था कि the term exceeds the second term by x amount, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एड ऑन दिया है कि थर्ड टर्म इज 16, ठीक है, वेरी इजी। सो लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d. यू नो द जनरल फॉर्म Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. T3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, बिकॉज इट इज गिवन दैट T3 इज इक्वल टू 16, दैट इज T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 16. नाउ यू नो सेवेंथ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है, तो T7 एंड T5 भी ढूंढ सकते हो। T7 is equal to a plus 6d and T5 is equal to a plus 4d. अब यहाँ पे एक कंडीशन फॉर्म हो रही है कि सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12, correct? That is according to the given condition T7 minus T5 is equal to 10, that is the seventh term exceeds the fifth term by 12. So a plus 6d minus a minus 4d is equal to 12. तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, 6d minus 4d is what, 2d. 2d is equal to 12, that is d is equal to 6. Now you know that a plus 2d is equal to 16, correct? So d की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, 6. a plus 2 into 6 is equal to 16, that is a is equal to 16 minus 12. a is equal to 16 minus 12 which is equal to 4. Thus the required AP is 4. General form of AP क्या है, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, correct? So the required AP will be 4, 4 plus 6, 4 plus 2 into 6, 4 plus 3 into 6 and so on, और 4, 10, 16 and so on. समझ में आया। नेक्स्ट, फाइंड द 20th टर्म
फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। सेम टाइप का सम हमने सॉल्व किया था कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी से जब हम फर्स्ट में जाए तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, तो 20th टर्म क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो a is 3, L is 253 एंड D क्या हो जाएगा 8 minus 3 which is equal to 5. Now since the nth term from the last term is given by L minus n minus 1 into D, 20th term from the end क्या हो जाएगा, L कितना है 253, 253 माइनस ऑफ n माइनस 1D, n कितना है 20, क्योंकि आपको 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, करेक्ट, आपको 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। सो 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5। समझ में आया हमने क्या किया, L में से हमने जो हमें टर्म चाहिए था उसको माइनस कर दिया, दैट इज 253 माइनस ऑफ 20 माइनस 1 इंटू 5। सो 20th टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा 253 माइनस 95 विच इज इक्वल टू 158। दिस इज द ऑल्टरनेट टाइप। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, या जो पहले वाला मेथड जो मैंने बताया था या तो ये वाला मेथड, ठीक है। 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज व्हाट 158, ठीक है। नेक्स्ट, the sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24। मतलब अब बोल रहे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म इज इक्वल टू 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड द 10th टर्म इज 44 एंड सिक्स्थ T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 44। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द first three terms of the AP, ठीक है। So let the first term be A and the common difference be D, correct। So Tn क्या होता है, Tn is equal to A plus n minus 1D। Now you know that T4 plus T8 is equal to 24। So T4 can be written as A plus 3D and T8 can be written as A plus 7D। So A plus 3D plus A plus 7D is equal to 24, that is 2A plus 10D is equal to 24। तो इसको क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन को रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो मिलेगा A plus 5D is equal to 12, करेक्ट। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या थी, T6 plus T10 is equal to 44, that is A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44, that is 2A plus 9 plus 5 is 14, 2A plus 14D is equal to 44, reduced to the lowest form, divided by 2, that is A plus 7D is equal to 22। ये सेकेंड हो गया। अब आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको A एंड D की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपको मिल जाएगा, दैट इज 2 माइनस 1 कर दूं तो A प्लस 7D माइनस A माइनस 5D इज इक्वल टू 22 माइनस 12, करेक्ट। हम ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन ले रहे हैं, करेक्ट, हमने ऐसे ही किया है आज तक। सो A एंड A कैंसिल हो जाएगा, 7D minus 5D is what 2D and 22 minus 12 is 10, so 2D is equal to 10, this implies D is equal to 5, correct। अब D को कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो एंड A की वैल्यू फाइंड कर लो। सो A plus 5D is equal to 12, so D कितना मिला 5, so A plus 5 into 5 is equal to 12, which implies A is equal to 12 minus 25, which is equal to minus 13, correct। Now the first three terms of an AP is given by A plus D, A plus 2D, correct, और minus 13 plus 5, minus 13 plus 10 and so on, और minus 13 plus 5 is minus 8, minus 13 plus 10 is minus 3 and so on। समझ में आया हमने क्या किया। नेक्स्ट, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। मतलब 1995 में सुब्बा राव ने काम करना चालू किया
तो उसकी सैलरी, एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल में उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपए। एंड शी रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी 5,000 थी, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी 5,000 प्लस 200 दैट इज 5,200, फिर 5,400 एंड सो ऑन। अब देख रहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी फॉर्म हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डिफरेंस जिसका 200 है, करेक्ट। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। अब आपको ढूंढना है कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 हुई, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ए इज इक्वल टू ₹5,000, डी इज इक्वल टू 200। नाउ लेट say in nth year he gets ₹7,000, that is Tn is equal to a plus n minus 1d, correct. So 7,000 is equal to 5,000 plus n minus 1 into 200. 7,000 minus 5,000 or 2,000. So 2,000 is equal to n plus 1 into 200, correct. 2,000 is equal to n minus 1 into 200. So n minus 1 क्या हो जाएगा, 2,000 divided by 200 which is equal to 10. So n is equal to 10 plus 1 that is 11. So n is equal to 11 years. So in 11th year his income will reach ₹7,000. ठीक है, समझ में आया, वेरी इजी सम। नेक्स्ट, रामकाली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड, मतलब उसने, रामकाली ने क्या किया, फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव किए एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। उसके बाद सेकेंड वीक से उसने क्या किया, उसने अपना वीकली सेविंग्स हर हफ्ते बढ़ाया 1.75 रुपीज से। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, फाइंड n। मतलब कौन से वीक में उसकी सेविंग 20.75 होगी, हमें वो ढूंढना है। सेम प्रीवियस सम जैसा है, खाली प्रीवियस सम ईयरली था, ये वीकली है और कोई चेंज नहीं है। सो a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 1.75। इन द nth वीक, लेट इन द nth वीक हर सेविंग्स बिकम 20.75। सो tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। tn यहाँ पे क्या है 20.75। सो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, करेक्ट। दैट इज n माइनस 1 इंटू 1.75 is equal to 20.75 minus 5, that is 15.75. So 20.75 minus 5 is equal to n minus 1 into 1.75, correct. So 15.75 divided by 1.75 कितना होता है 9, that is n minus 1 is equal to 9. So n is equal to 10. Thus the required number of years is 10 years, or the required number of weeks. The required number of weeks is equal to 10. ठीक है। So what have you learned today? आज हमने आपका सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट किया। जितने सम्स है इसमें आपको सारे सम्स अच्छे से एक एक सम आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट सारे टाइप्स के सम हमने कवर किए। कितने सम्स आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल से सेम है, खाली नंबर्स चेंज्ड है। सो अच्छे से रिवीजन करो क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, आप समझ गए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम है तो इसके लिए आप कोई चांस नहीं ले सकते। डोंट स्किप एनी सम, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो हैव अ वेरी गुड रिविजन, प्रैक्टिस थॉरली। थैंक यू।